مگر اس گاؤں کے چند نوجوانوں نے مل کر ایک سوسائٹی بنائی اور اس سوسائٹی کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز، جس میں سے ایک کنٹریبیوشن اس جنازہ گاہ کی توسیع ہے، اور یہ توسیع انتہائی ماڈرن طریقے سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میرے اس گاؤں کے سب سے بڑے علمی گھرانے کے افراد یہاں کے مکینوں میں شامل، دیگر کئی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ میرے ابو موجود۔ ماشاءاللہ۔ کس کا؟ العافیہ، عافیت کا، معافی کا، بخشش کا، مغفرت کا۔ صحیح صحیح، ماشاءاللہ۔ ہم اسے پیو کر دیا۔ ہاں، ویسے اتنا لنک ہونا چاہیے کہ ایک اور جی بھی انشاءاللہ ہو جائیں گی چیزیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ اس قبرستان کا نام ہونا چاہیے حبیب قبرستان، اس لیے کہ وہ زمین انہوں نے وقف۔ بڑی بات ہے سر، بڑی بات ہے یہ۔ میرے اپنے جو ساتھ تھے علامہ عبدالغفور، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی وفات ہوئی تھی 25 مارچ 1991 کو۔ تو ان کی اپنی قبر وہ سینٹر میں بالکل ایسے سادہ سی نا، ان کی فیملی عبدالقدوس کے وہ تھے نانا بھائی علامہ عبدالغفور۔ قبرستان میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ وہ دعا کچھ یوں ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ۔ یہ اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی سکھلائی دعا ہے کہ اے اہل الدیار، گھروں والوں، جی اہل الدیاری، اے اہل الدیار، اے گھروں والوں۔ کون سے گھروں والوں؟ ان گھروں والوں، یہ جو گھر ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان گھروں کے مکینوں، رہنے والوں۔ کون سے مکین؟ کون سے رہنے والے؟ مومنین اور مسلمین، یعنی ان گھروں کے مومن اور مسلم مکینوں، رہائش پذیروں، رہنے والوں۔ کیا ہو؟ السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو، سلام ہو، اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، تم پر امن ہو۔ کیا ہو؟ سلامتی ہو۔ یعنی پہلی کہ بات سارے قبرستان والوں کو میں مومن سے تشبیہ ہے۔ ان مومن و مسلم اہل الدیار کی، مکینوں کی، رہائشیوں کی فہرست بہت طویل، مگر خونی رشتوں کو لے کر یہاں میرے دادا ابو کے والد اور ان کے 2 چچا اور 2 بھائی موجود، میرے نانا ابو، ان کے والد اور 2 چچا، 1 بھائی موجود، میری نانی اماں اور ان کے والدین موجود، میرے ماموں رمضان موجود، میرے ماموں زاد اکرام موجود، میرے چچا نظر الہی اور چچا یوسف موجود، دیگر کئی رشتوں کے ساتھ ساتھ، جی دیگر کئی رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ میرے ابو موجود۔ ماشاءاللہ۔ میرے اس گاؤں کے سب سے بڑے علمی گھرانے کے افراد یہاں کے مکینوں میں شامل، جن میں میرے روحانی معلم علامہ عبدالغفور موجود، ان کے 2 بھائی حکیم عبدالحی اور صحافی و دانشور مؤرخ عبدالحمید موجود، علامہ عبدالغفور کے 2 بیٹے عبد الماجد اور صدیق موجود، عبدالحی کے 2 سپوت، جی 2 سپوت محمد اسلم اور عبد الرشید موجود، پنچایتی نظام عدل اور ملکی و علاقائی سیاسی امور کو لے کر عبداللہ نامی ایک انتہائی معزز و معتبر شخصیت موجود، اسی علمی و ادبی اور دانشور گھرانے سے تعلق رکھنے والے میرے سب سے اچھے دوست عبد القدوس زاہد کے والد حافظ عبد الحمید موجود، عبد القدوس زاہد کے بھائی حسین احمد موجود۔ الحمدللہ۔ پھر اگلی بات کیا کی؟ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو، بکم، آپ کے ساتھ، لاحقون، لاحق ہونے والے ہیں، ملنے والے ہیں، ملحق ہونے والے ہیں، آپ سے ملنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ لاحقون کا مطلب ملنے والے، لاحق، خبر کی یاد ہو۔ ہاں، اور ہم بھی عنقریب جب اللہ چاہے گا تو آپ سے آ کے ملنے والے ہیں۔ اس دعا کا تیسرا حصہ یہ
کہ नसअलुल्लाह, नसअलु हम सवाल करते हैं, हम मांगते हैं, किससे? अल्लाह से। नसअलुल्लाह, हम अल्लाह से सवाल करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, लना, अपने लिए, हम अपने लिए अल्लाह से सवाल करते हैं, अपने लिए अल्लाह से मांगते हैं, वलकुम, और तुम्हारे लिए सवाल करते हैं, जी तुम्हारे लिए सवाल करते हैं, तुम्हारे लिए मांगते हैं, हम अपने लिए और तुम्हारे लिए सवाल करते हैं। किसका? अल आफिया, आफियत का, मुआफी का, बख्शिश का, मगफिरत का। सही सही, माशाअल्लाह। हम अल्लाह से सवाल करते हैं आपकी आफियत के लिए और अपनी आफियत के लिए। सही तो सही, ये अल्लाह के नबी की सिखलाई हुई दुआ है। 3 हिस्से हैं, सही, तरतीब पे बाद में बात होगी। माशाअल्लाह। तो ये है जी कब्रिस्तान। तो यही रास्ता था पुराना, ये उन्होंने ये इसे पेव कर दिया। हाँ, तो वैसे इतना लिंक होना चाहिए कि कार मोटर जी, ये भी इंशाल्लाह हो जाएंगी चीजें। कब्रिस्तान यहाँ से शुरू हो गया, वहाँ से वो शुरू हुई, माशाअल्लाह। आपको नजर आ रही है जैसा देखिए वो आगे तक जा रहा है जी अल्लाह। कब्रिस्तान। उधर वो आपको इमारत नजर आ रही है, उससे थोड़ा अच्छा, माशाअल्लाह। आगे कब्रें नहीं है अभी तक, वो आपको आखिरी कब्र नजर आ रही है। तो यहाँ की एक फैमिली है, सही तो ये जमीन उन्होंने दी थी। सही, अल्लाह ताला उन बुजुर्गों को जिन्होंने जमीन वक्फ की थी कब्रिस्तान के लिए, आमीन। उन्हें अजर अजीम दे। आमीन आमीन। अब तो हम तो 1 इंच जमीन के लिए कत्ल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे सर, बहुत बड़ा एरिया है। जी। मैं देख रहा हूँ हमारे इधर चक में या इधर उधर देखें, हमारे चक का बहुत बड़ा जी। कब्रिस्तान है, लेकिन आसपास देखें ना छोटे कब्रिस्तान है। जी, तो ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान ऐसे है, ही। फैला हुआ है। ऐसे ही। अभी वापसी पे याद करवाई, ये जो नया कब्रिस्तान अभी बना है, अभी जब मेरे अब्बा जी की वफात हुई, उनकी वफात से मेरे अब्बा जी की वफात के 2 दिन बाद एक यहाँ बुजुर्ग फौत हुए, बाबा हबीब जंदियाल। सही, वो बड़े, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़े प्यारे आदमी थे। तो उनके अंदर जो मिज़ाज वाली हिस्स थी, कमाल की थी। सही तो उनके लतीफ़ों पे मुश्तमिल मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। सही, ताया सही। मेरे साथ हैं, ताया मनशा। सही, तो वापसी पे जाएंगे तो आपको दिखाऊंगा, जहाँ वो बच्चियों वाले स्कूल हम देखे, जहाँ से जहाँ पे जो एंटर हुए अपने गाँव में ना, राइट हैंड पे था। हाँ। सही, ऐसे ही, तो उन्होंने जमीन वक्फ की है। अब वो मेरे ख्याल में है 20 कनाल जगह है, माशाअल्लाह। 20 कनाल जगह। उनकी अपनी जाती जगह थी। जी, उन्होंने जाती जगह वक्फ कर दी। अल्लाह। और उस पे जो औलाद नहीं ना। हाँ, अच्छा, जो पहली कब्र बनी वो उन्हीं की बनी। अच्छा, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि उस कब्रिस्तान का नाम होना चाहिए हबीब कब्रिस्तान, काफी कब्रिस्तान। इसलिए कि वो जमीन उन्होंने वक्फ। बड़ी बात है सर, बड़ी बात है। अच्छा। ये इसका मतलब है फिल हो गया है। जी जी, नहीं यहाँ अब पे ये गुंजाइश है कोई? हाँ, बहुत आगे पड़ा है अभी ना, अच्छा अच्छा, जमीन काफी पड़ी है, लेकिन क्योंकि अब आबादी फैल रही है ना, सही तो उधर तो उस वक्त गाँव था नहीं ना, जो अब्दुल कुद्दूस लोगों का घर है, उससे आगे कोई आबादी नहीं थी ना। सही। तो अब देख लें गाँव उस तरफ फैल रहे हैं, और अब नजर आया होगा इस तरफ ही फैल रहा है। इसके पीछे आइडिया यही है कि वहाँ के लोगों को बजाय इसके कि वो डेड बॉडीज इधर लाएं, उन्हें क्यों ना वहीं उसी तरफ फैसिलिटेट किया जाए। सही बाबा जी आख्या तो उन्होंने अपनी कब्र उठे हाँ, पहली कब्र नानी बनी है सर। सही। कब्रिस्तान को देख के पहली जो दुख में जो ज़हन में एक चीज आती है ना, कि जी। जैसे था ना कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम ही है ना कि जी। कब्रों को आराइश की जगह ना बनाओ। जी जी तो जी जैसे ये कैमरा आपको दिखाएगा ना, जी, यहाँ से, ये कब्र आप इस हाँ तरफ- जी, तो यहाँ से इधर सारा आप देखते जाएं, देखते हाँ, जाएं। ऐसे ही। ऐसे पता चलता है जैसे कोई यहाँ पे वीराना है, जैसे जी, एक इबरत की जगह है। जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि कब्रों पे जाया करो कि आपको इबरत हासिल हो, अपनी मौत याद हो। ऐसे ही। तो यहाँ इस पे आके मौत याद आती है बंदे को। ऐसे ही, ऐसे ही। देखो अब ये देखिए, और बिल्कुल सिंपलेस्ट ओ, कब्रें मैंने जी। जो है ना अपने जिले में मैंने इतनी सिंपलेस्ट कब्रें नहीं देखी। जी, ऐसे ही है। सारी एक जैसी हैं, ऐसे। मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या पड़ा हुआ है, ऊपर पत्थर पड़े हुए जी हैं, जी जी, पहाड़ी पत्थर पड़े हुए हैं कि ऐसे। बारिश जो है डायरेक्ट ना ऊपर Excellent, लगे। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे अपने जो साथ थे, अल्लामा अब्दुल गफूर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी वफ़ात हुई थी 25 मार्च 1991 को। तो उनकी अपनी कब्र वो सेंटर में बिल्कुल ऐसे सादा सी ना, उनकी फैमिली अब्दुल कुद्दूस के वो थे नानब, अल्लामा अब्दुल गफूर। तो अब्दुल गफूर साहब की ये तालीमात थी कि वो चीज़ में बहुत जोर देते थे ना कि नबी की जो सुन्नत है उसे फॉलो किया जाए, दीन की असर रूह के मुताबिक कब्रें बनाई जाए। सही। उनकी उनका बहुत बड़ा अहमद है। तो सर क्रेडिट जाता है ना। ये जगह जो आप देख रहे हैं जी, यहाँ एक ऐसी फैमिली की कब्रें हैं जिस फैमिली की औलाद से आप मिल चुके हैं जी, आप मिल चुके हैं।
और अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी कि आपने अपनी मां के नाम पे जो ट्रस्ट बनाया, आई मीन नसीम ट्रस्ट, उसी प्लेटफॉर्म से आपने इसी फैमिली के 2 बच्चों को घर बना के दिया। आप समझ गए होंगे यकीनन। और सिर्फ घर ही नहीं बनाया बल्कि आप उनकी मुसलसल माली मुआवनत भी करते हैं। रब्बुल इज्जत आपको अजरे अजीम अता फरमाए और आपके इस अमल को आपकी वालिदा के लिए इसाले सवाब का जरिया बनाए। आमीन। आइए इस जनाजागाह की तरफ लौटते हैं। ये जनाजागाह जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कुछ माह पहले तक इसका साइज छोटा था और उस छोटे से जनाजागाह का फर्श ईंटों पर मुश्तमिल था। जी, छोटा सा जनाजागाह और उसका फर्श ईंटों पर मुश्तमिल था। मगर इस गांव के चंद नौजवानों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस, जिसमें से एक कंट्रीब्यूशन इस जनाजागाह की तोसी है और ये तोसी इंतहाई मॉडर्न तरीके से की गई है। अल्लाह ताला इन तमाम नौजवानों को अजरे अजीम अता फरमाए और उनके आबाओ अजदाद के लिए, इनके लिए, इनकी आने वाली नस्लों के लिए इस अमल को इसाले सवाब का जरिया बनाए। आमीन। तुर गए यार दिलां दे जानी, वतन चुक मुहारा, उजड़ी बस्ती यारो नजरी आवे, कंड कीती जद यारा।